Good morning, Namra. गुड मॉर्निंग मांडवी। आज व्रत हैं क्या आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग नोट प्रिपेयर करते रहिए। बहुत जल्दी मैं गूगल लिंक दूंगा नोट को शेयर करने का, अपलोड करने का। नोट बना रहे हैं शशांक? हाँ शशांक, ठीक। So in last lecture, I told you about the point-to-point network, and point-to-point network is governed by the point-to-point protocol. There are various transition steps of
point-to-point protocol. First one is ideal state, second one is establishing state, third one is authenticated state, fourth one networking state. This is the heart of transition state of point-to-point protocol, and fifth is terminating state. I also gave you detailed note about this particular transition states as well as diagram also. Now come to the point-to-point protocol layers, PPP layers. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो. So point-to-point protocol is directly operate. डिम्पल बेटा बहुत लेट हो गया है. Directly operates on physical layer and data link layer, but also it supports network layer and transport layer. Basically PPP layer focused on physical and data link layer, but due to the network configuration and point-to-point network configuration, PPP layers also support network layer as well as transport layer. अभी तक लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं. So PPP layer can be examined with the help of this diagram. या पैरेलली बनाते चलेंगे, ज्यादा समझ में आएगा. ये ना सोचिए कि सर नोट्स देंगे तब काम करेंगे, इसको करते चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. डेटा लिंक लेयर पहले जो आपकी अपर लेयर है, और उसके बाद फिजिकल, उससे पहले जो है आपकी फिजिकल लेयर है. दिस इज बेस्ड ऑन ANSI स्टैंडर्ड. So point-to-point protocol basically focused on two lower level layers, physical layer as well as data link layer. तो पूरे को आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए. This is configuration of PPP layers. First one is physical layer. ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. Physical layer. So physical layer is very lower level of layer in the OSI model. This defines the actual configuration of point-to-point networks. So PPP protocol directly focused and deal with physical layers of arrangement. It is left to the implementer to use whatever is available. Where there is no specific guidelines, there is no specific frame format. For the physical layer, PP supports only the protocol in context of physical layer as per NSI standard, American National Standard of Institution. ये इसी के थ्रू ही जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं को ही ये फॉलो करता है. ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं बनाए गए हैं. डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इम्प्लीमेंटेड यूज. नेक्स्ट कम टू द डेटा लिंक लेयर. PPP यानी point to point protocol directly and forcefully deal with data link layer in context of data transfer from one device to another device, and data link layer is directly based on the variation of HDLC. So PPP यानी point to point protocol frame format except in the concept of data link layer as per the HDLC frame format. So PPP frame format for data link layer मुस्कान बंसल बेटा टाइम भी ज्वाइन करो.
डेटा लिंक लेयर की अगर हम बात करें, DLL का मतलब डेटा लिंक लेयर है। यहाँ पे इसका प्रॉपरली फ्रेम फॉर्मेट होता है, जो कि हमने HDLC का फ्रेम फॉर्मेट देखा था। लगभग सेम, लगभग वही होता है। फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, प्रोटोकॉल, डेटा, FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, और लास्ट में फिर से फ्लैग होता है। दिस इज PPP फ्रेम। This is 1 byte. This is also 1 byte. Control is also 1 byte. Protocol is 1 or 2 byte. डेटा वेरिएबल है, अप्रोक्सीमेटली 4500 तक होता है। यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 0 to 4500 बाइट होती है। FCS आपका 2 to 4 बाइट है, यहाँ लिख देता हूँ 2 to 4 बाइट, एंड फ्लैग आल्सो 1 बाइट। ये सभी को दिख रहा है, सभी लोग देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए फ्लैग, सबसे पहले एक फ्लैग होता है। फ्लैग फील्ड लाइक इन HDLC फील्ड आल्सो फील्ड आइडेंटिफाइज द बाउंड्रीज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फ्रेम फॉर्मेट। तो फ्लैग स्टार्टिंग में भी है, लास्ट में भी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फ्लीट जिस तरह से चलता है किसी भी VIP पर्सन का, तो सबसे जो आगे है वो ग्रीन कलर का फ्लैग लगा करके व्हीकल आपका पास होता है, और लास्ट में रेड कलर का फ्लैग लगा करके व्हीकल रहता है लास्ट में उस पूरे फ्लीट में। तो इसी तरह फ्लैग, जो भी आप फ्रेम फॉर्मेट पढ़ेंगे उसमें भी एक फ्लैग जरूर होगा। HDLC में इस तरह का प्रोविजन था। सेम HDLC की प्रोविजन को अडॉप्ट किया है PPP ने, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क फॉर डेटा लिंक लेयर। In physical layer, there was no fixed frame format. It directly follows the standard of ANSI. But in data link layer, there is a fixed frame format. The flag contains 1 byte. Its value is approximately 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0। जो इसकी वैल्यू आपको अगर दिखेगी तो ज्यादातर, चाहे ये स्टार्टिंग का फ्लैग हो या लास्ट का फ्लैग हो, जो बिट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब हम 1 बाइट की बात करते हैं, 1 बाइट की बात करते हैं, तो इसका अरेंजमेंट या इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 बाइट होती है, एंड दिस इज फिक्स्ड। नेक्स्ट है एड्रेस फील्ड। बिकॉज PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, it uses the broadcast address of HDLC, which is 11111111, यानी 8 बिट्स होते हैं और सारे बिट्स जो होंगे वो 1 होंगे। देयर इज नो 0। जब भी आप एड्रेस डिफाइन करेंगे डेस्टिनेशन का या रिसीवर का, तो उस एड्रेस में 1 बाइट का एड्रेस होगा, 8 बिट का एड्रेस होगा, एंड ऑल बिट्स विल बी 1। This is fixed format to avoid data link address in the protocol. Data link address में 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जब आप PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के फ्रेम फॉर्मेट को यूज करेंगे फॉर द डेटा लिंक लेयर, whenever sending any data from sender to receiver, then address will be in this format only. Third one is control field. Third one is control field. This is also 1 byte. This is also 1 byte. The control field use the format of U frame. I already told you there were 3 frames of HDLC: I frame, U frame, and S frame. I frame was information frame, U frame unnumbered frame, and S frame was supervisory frame.
So control field is used unnumbered frame format of HDLC. The value is 11000000. Its length is also 1 byte, and the all bits यानी all 8 bits, first 2 bit is 1 and rest 6 bits are 0. Protocol. Let's come to the protocol. The protocol field defines what is being carried in the data field, user data or other information. तो प्रोटोकॉल फील्ड 1 बाइट का होता है, 1 और 2 बाइट का होता है. इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है. 1 और 2 बाइट का हो सकता है, फिक्स पैटर्न नहीं है. 0101 के कॉन्सेप्ट होता है, अल्टरनेटिवली होता हो सकता है 4 1s हो, 4 0 हो, 8 1s हो, 8 zeros हो. अगर आप 2 बाइट प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, इसमें कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है. ये डायरेक्टली डील करता है कि जो भी डेटा आप भेज रहे हैं वो किस फ्रेम का है, किस फॉर्मेट का है, उसके साथ रूल्स कौन से फॉलो हो रहे हैं, कौन से रूल के थ्रू डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, यानी सेंडर टू रिसीवर. नेक्स्ट है डेटा फील्ड. दिस इज आल्सो वेरिएबल and approximately size is 0 to 4500 byte as the size of HDLC in data field. The field carriers either the user data or information will be carried out in the data field. Next है FCS, frame check sequence. FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस, फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए. फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड एज कंपेरिजन विद HDLC is simply 2 byte or 4 byte and there is no fixed format in concept of frame check sequence. कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है. साइज इसका 2 to 4 byte होता है. और लास्ट में फिर से फ्लैग है. दिस शोज द एंड ऑफ योर फ्रेम फॉर्मेट, 1 बाइट एड्रेस, और इसका भी जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 0 1 1 1 1 1 0, सेम कॉन्फ़िगरेशन इसका भी होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इन कॉन्सेप्ट ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई फील्ड ना समझ में आई हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया, जरूर पूछ लीजिए. ठीक है. अभी मैं आपको बता भी रहा था, जब आपके जो सुपर सीनियर का अभी वाइवा हुआ है मंडे एंड वेडनेसडे 12 एंड 14 को, तो प्रोजेक्ट तो सभी का रन कर रहा था, कुछ का नहीं रन कर रहा था, वो अकॉर्डिंगली उस पर डिपेंड हुआ. साथ ही साथ उन्होंने प्रोजेक्ट को रन करा के देखा और नेटवर्किंग के क्वेश्चन, उनके जो मेन क्वेश्चन थे वो डेटा स्ट्रक्चर, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस और नेटवर्किंग, इन 4 पे ज्यादा बेस थे. और थोड़ा सा MIS के बारे में पूछा था. जब भी कोई भी अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था तो MIS यानी उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसकी वर्किंग, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा था. लेकिन मैं यहाँ पे जो अगर इस सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से बात करना चाह रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट में अगर आपसे बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने नेटवर्किंग के भी कॉन्सेप्ट पूछे थे. तो बहुत डीप पे ना पूछ करके टोपोलॉजी क्या होती है, OSI लेयर्स कौन होती है, प्रोटोकॉल कौन कौन से फॉलो होते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर पूछा था पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग, यानी जब आप इसको किसी भी साइट पे जाकर के अपलोड करेंगे फर्दर, तो जो सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट किस तरह से करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन उन्होंने जरूर पूछे थे. टोपोलॉजी जरूर पूछी थी, कौन सी टोपोलॉजी आप फॉलो करेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नेटवर्किंग का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें. डिम्पल, डिम्पल, समझ में आ रहा है बेटा?
नेटवर्क सही करो, नेटवर्क सही करो है, मोबाइल के नेटवर्क पे ही भेज दो। नहीं, लैपटॉप से कनेक्ट हो, लेकिन लैपटॉप कनेक्ट किससे, जियो फाई लगाया है या मोबाइल के नेटवर्क से यूज कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें स्पीड कम होती, इसीलिए ब्लर आएगा, समझ रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आप लेक्चर सुन पा रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन पा रही हैं, और साथ ही साथ इस लेक्चर को मैं अभी पोस्ट करूंगा, अपलोड करूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, डिटेल नोट्स भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो कम से कम सुनना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कम टू द अनदर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ अदर प्रोटोकॉल भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? द अदर प्रोटोकॉल इज लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल, फिर जो हमने आपको ये स्टेट्स बताई है या ये आपकी जो वर्किंग बताई है, इनमें जो है कैसे वर्क करता है, तो इनको वर्कआउट करने के लिए पीपी इज नॉट केपेबल टू वर्कआउट दिस पर्टिकुलर स्टेट्स, तो इट आल्सो टेक हेल्प ऑफ एलसीपी। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलसीपी इज फॉर एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, फॉर मेंटेनिंग द कनेक्शन एंड आल्सो कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में टर्मिनेटिंग। ये जो प्रोसेस होते हैं, इनको अकेले पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नहीं डिलीवर कर पाता है या नहीं मेंटेन कर पाता है, तो हेल्प उसमें जो जरूरत पड़ती है वो होती है एलसीपी की, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट आल्सो प्रोवाइड नेगोशिएशन मैकेनिज्म टू सेट ऑप्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स whenever there are any connection between sender and receiver. So there are lot of rules set during the connection, lot of negotiations, lot of protocols work out for establishing a successful connection. Negotiation में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें टाइम हो जाएगा, स्पीड हो जाती है, साथ ही साथ सिक्योरिटी, ये सारी चीजें नेगोशिएशन का पार्ट है। तो जब भी कनेक्शन हम कहते हैं स्टैब्लिश करना है या कनेक्शन के लिए बात कर लिया, हमने कहा सेंडर से रिसीवर की ओर हम अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, तो बिफोर वेन एवर वी गोइंग टू सेंड अवर डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड या सेंडर टू रिसीवर, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज कैरीड आउट बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. So these negotiation is also carried out by the link control protocol. There are various descriptions of fields used in LCP. Fields of LCP. First one is code. अब इसका फ्रेम फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे. First one is your code. Code field define the type of LCP packet. LCP packets type is defined by the code field. Next है ID. This field holds a value used to match request with reply. One endpoint insert a value in this field which will be copied in the reply field. So this hold a value to match a request with reply. Next है, एक मिनट बेटा थोड़ा सा. There are lot of disturbance. So length. This field defines the length of whole LCP packet. Length of
whole LCP packets, and last is information. This contains the actual data or the information of LCP frame. So length is the length of whole LCP packet, information actual data oblique information of LCP frame. तो चार मेन आपकी ये फील्ड्स होती हैं. अब आते हैं फ्रेम फॉर्मेट में. फ्रेम फॉर्मेट ऑफ LCP. अब तक आपने बहुत सारे फ्रेम फॉर्मेट पढ़े हैं, तो उनको सभी को ध्यान रखना है. और ये जो मैं फ्रेम फॉर्मेट जितने ही बता रहा हूं ये सब बेस्ड है HDLC पे. अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये सारे फ्रेम फॉर्मेट बेस्ड हैं HDLC पे. फ्रेम फॉर्मेट ऑफ LCP सेम एज द PPP. इसमें भी एक फ्लैग होता है, एड्रेस, कंट्रोल, प्रोटोकॉल, डेटा, FCS और फ्लैग. साइज ऑफ ईच फील्ड सेम एज PPP, 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 to 2 byte, 0 to 4500 वेरिएबल होता है आपका, 2 to 4 byte एंड ये 1 byte. कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. डिफरेंस ओनली इज दैट द प्रोटोकॉल here mentioned in LCP is also bifurcated with other frame format. प्रोटोकॉल का अपना अलग से एक फ्रेम फॉर्मेट होता है. जिसके हमने ये चार फील्ड आपको बताए हैं: कोड, आईडी, लेंथ एंड इंफॉर्मेशन. इसीलिए मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया. तो जो प्रोटोकॉल यहाँ प्रोटोकॉल वहां पे कोई डिफाइन स्पेसिफिक नहीं था. बताया था जो HDLC का प्रोटोकॉल से वही प्रोटोकॉल आल्सो यूज्ड इन PPP, बट ड्यूरिंग द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, negotiation, sending of data and terminating the connection. These are 4 states which is effectively come into the task of LCP only. तो LCP ने अलग फर्दर अपना फ्रेम फॉर्मेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटोकॉल डेवलप किया, जिसमें कोड की लेंथ होती है 1 byte, आईडी की भी 1 byte होती है, लेंथ 2 byte होता है, और इंफॉर्मेशन जो भी मैंने बताया एक्चुअल डेटा, ये जो डेटा है एक्चुअल डेटा होता है, ये वेरिएबल रेंज का होता है. मैक्सिमम इसकी 4500 बाइट होती है. तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन PPP एंड LCP इज दैट PP is directly based on HDLC and all rules follows HDLC, same follows by the PPP, क्योंकि दोनों उसी कॉन्टेक्स्ट में डेटा लिंक लेयर में ही वर्क कर रहे हैं. बट there are some special activities, some special transition stage which is directly come to the under of LCP, because PP is not capable to handle or deliver the actual rules or protocol. So PPP in the protocol there divides 4 units and set their own frame format in context of protocol used by LCP. ये समझ में आया? दिख रहा है डायग्राम? स्वर्णिम, डायग्राम देख पा रहे हैं आप? जो लिखा हुआ समझ में आ पा रहा है? अच्छा, क्या आ गई आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? मांडवी,
तुम्हारे यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन पैकेट्स। LCP also deals with the कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैकेट्स। जो हम पैकेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे तो प्रोटोकॉल की बात हुई है, साथ ही साथ जब आप पैकेट डिजाइन करते हैं, पैकेट कॉन्फ़िगर करते हैं, LCP also plays an active role making the packet and the configuration of packets. Configuration packets are used to negotiate the operation between two ends or the two devices. There are 4 different packets used for this purpose. First one is configure request. That is why LCP is so important, क्योंकि जब आप डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे थे तो वहां तो हमने आपसे सिर्फ डिस्कस किया था कि यहाँ पे सिर्फ पैकेट्स भेज दिए जाते हैं या फ्रेम भेज दिए जाते हैं, लेकिन फ्रेम का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा, रूल कौन से, प्रोटोकॉल कौन से फॉलो होंगे, ये सब कुछ डील होता है PPP और LCP के थ्रू। तो फर्स्ट जो आपका पैकेट टाइप है, दिस इज कॉन्फ़िगर रिक्वेस्ट। द एंड पॉइंट दैट विशेस टू स्टार्ट अ कनेक्शन सेंड्स configure request message with a list of 0 or more option to the other device. Second one is your configure ACK, means configuration acknowledgement। सबसे पहले उसने रिक्वेस्ट की, फिर configuration acknowledgement वेट करेगा sender from the receiver। If all the options listed in the configuration request packet are accepted by the receiver end or the actual receiver, it will send a configure ACK or configuration acknowledgement which repeats all of the options requested। Means ये बता देगा कि जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वेस्ट दी थी विद द ऑप्शंस, तो उसने उस ऑप्शंस को, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके अगेंस्ट में एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पैकेट डायरेक्टली सेंड नहीं होता है, सबसे पहले ये नेगोशिएशन प्रोसेस होता रहता है, एंड दिस इज डील विद द LCP। थर्ड वन इज कॉन्फ़िगर NAK। If the receiver of configuration required packet recognize all of the options but find that some should be omitted or revised, so it does not give you configure ACK, it sends you configure NAK, negative acknowledgement देगा। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो NAK भी भेजेगा, जरूरी नहीं कि हर टाइम में वो एक्नॉलेजमेंट आपको पॉजिटिव ही भेजे। इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड or it is not capable to receive your packet, it directly reject your the request। And finally configure terminate। After the successful sending of all packets from the sender and receiver received all the packet and also it send all acknowledgement against the received packet, then configuration termination request is sent by the sender and finally terminate your the configuration connection or the configuration packets। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस आता है ऑथेंटिकेशन। इतनी सारी बात हो गई, ठीक है। हमने पैकेट भी, पहले तो प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश हो गया PPP, फिर LCP जो कि नेगोशिएशन करेगा कनेक्शन में, सेंडिंग में और टर्मिनेशन में, नेटवर्किंग में और टर्मिनेशन में। नेक्स्ट कम टू द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में इट इज द प्रोसेस by which you are able to recognize the actual receiver
एक्चुअल जेन्यून रिसीवर, ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड पर्सन बन जाए एज ए रिसीवर और आप गलत हाथों में अपना डेटा सेंड कर दें, गलत जगह आपका डेटा चला जाए। सो ऑथेंटिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग पीपीपी एंड एलसीपी प्रोटोकॉल। Authentication means validating the identity of user who need to access a set of resource. So PPP has created two protocols for the authentication. First one is PAP. This is password authentication protocol. And second one is CHAP. This is challenge handshake authentication protocol. देखिए नेटवर्किंग में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब बेस्ड होते हैं प्रोटोकॉल पे। जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, अभी ऑथराइजेशन की बात भी होगी, वहां पे भी प्रोटोकॉल यूज होगा। तो कहीं भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट जब भी फॉलो करेंगे या पढ़ेंगे या कोई भी स्टेप फॉलो करेंगे, ऑल स्टेप इज बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल। So whenever we are going to set any authentication property in our software, in our configuration, in our network establishment, there is different types of protocol work out to maintain the property of authentication. PPP, which is directly used for point-to-point network, point-to-point protocol, has two protocol for authentication purpose. First one is PAP, password authentication protocol. Second one is challenge handshaking authentication protocol. One by one discuss करते हैं। First one is PAP, password authentication protocol. So password authentication protocol is simple authentication procedure with two-step process. First one is the user want to access a system, इसको चाहे तो आप नोट डाउन करते रहिए, sends an authentication request or identification and a password. Second one is system checks, इसको भी एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम चेक्स द वैलिडिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड पासवर्ड और आल्सो आइदर रिजेक्शन यानी एक्सेप्ट और डिनाइज connection. So first of all, we understand the two important steps or process. The user who want to access the system sends an authentication, identification and a password. The system checks the validity of identification and password. It is either accept or denies the connection. जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी किसी भी प्रोटोकॉल को या किसी भी पेज को आप जब एक्सेस करने जाते हैं तो वो पासवर्ड आपसे कहता है। पासवर्ड जब आपको पता भी होता है या आपने कभी पासवर्ड सेट भी किया होता है प्रॉपर्ली, यू ऑलरेडी साइन अप दैट पर्टिकुलर पेज और साइट और एनी नेटवर्क, उसके बाद भी वो जेन्युइनली चेक करता है कि आप भी एक्चुअल यूजर हैं कि नहीं है फॉर अदर मैकेनिज्म, जिसमें कि एक ओटीपी होता है, वन टाइम पिन और वन टाइम पासवर्ड, जो कि एक्चुअल डिवाइस या जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन टूल्स या आपने अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए हैं ड्यूरिंग द साइन अप प्रोसेस, उसके थ्रू उसको चेक करता है कि आप ही एक्चुअल में यूजर हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपका जो है किसी ने पासवर्ड वगैरह कहीं से जो है लीक कर लिया, कहीं से चोरी कर लिया और फिर
वो यूज कर रहा है। इसके लिए भी वो 3-4 तरह के अदर फर्दर प्रोसेस के थ्रू वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी चेक करता है यूजर की, एक्चुअल यूजर की। समझ रहे हैं? तो दिस वर्क इज प्रॉपरली डन बाय द हेल्प ऑफ PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज CHAP, the challenge handshake authentication protocol is a three-way handshaking authentication protocol that provide more security than PAP. Means in this, password is kept secret, it is never sent online. ये कभी भी ऑनलाइन आपको नहीं भेजा जाएगा। जैसे PAP में OTP वगैरह आपको सेंड कर दिया सिस्टम पे और उसके बाद वो ऑनलाइन आ रहा है, ऐसा ना हो कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस नेटवर्क को ही हैक कर ले और उस OTP को वो कैप्चर कर ले। तो जो CHAP है वो डायरेक्टली इस प्रैक्टिस को रोक देता है। वो कभी भी ऑनलाइन कोई भी डेटा सेंड नहीं करता है, ना ही कोई पासवर्ड आपको देता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, 3 मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन जो आपका प्रोसेस होता है ये होता है चैलेंज पैकेट या चैलेंज वैल्यू। चैलेंज का नाम पहले समझिए, चैलेंज वैल्यू एक आती है। उसके बाद आप उसको करते हैं रिस्पॉन्स और जो भी नाम है रिस्पॉन्स नेम। उसके बाद वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। मीन सबसे पहले चैलेंज वैल्यू, रिस्पॉन्स आप जो भी देंगे और उसके बाद तब वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। दैट इज नोन एज 3-way हैंडशेकिंग। इट इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सपोज सीक्रेट क्वेश्चंस। जो सीक्रेट क्वेश्चन आप देखते हैं या कुछ अदर एक्टिविटीज, कैप्चा इज अनदर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू डू और चेक actual authentication of the user for the system whatever you are using। तो जो आप कैप्चा या सीक्रेट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो इसी कैटेगरी में आता है कि इसमें आपको कहीं भी ऑनलाइन कुछ सेंड नहीं करना है, ना कोई OTP आपको देना है। वहां पे जो भी आपने ऑलरेडी साइन अप के समय में जो भी उनको कुछ की क्वेश्चंस या की आंसर्स या कोई हिंट या कोई सीक्रेट क्वेश्चन दिए थे या जो भी और अदर फॉर्मेलिटीज आपसे कराई थी या साइन डिजिटली साइन कराया था, वो सब मैचिंग यहाँ पे होता है। तो ये 3-way हैंडशेकिंग है। चैलेंज का मतलब वो एक क्वेश्चन पुट करेंगे आपके सामने या वो क्वेरी और इवेंट देंगे जो कि साइन अप के समय आपने वहां पे डीलिंग की थी, डील किया था। उसके बाद आप उसको उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स के बाद वो चेक होगा, आइदर इट इज एक्सेप्टेड और इट इज रिजेक्टेड। So this process, the system sends to the user a challenge packet or challenge value containing a actual value. Second, the user applies a predefined function that takes the challenge value या आप कह सकते हैं directly answer the challenge question या challenge task. The third point जो accept reject है, the system does the same. It applies the same function to the password of user. Check your response against the challenge question or the value and then come to the decision whatever it is accepted or rejected. So this is 3-way handshaking authentication process. इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। So this is all about point to point networking. इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, क्योंकि ये सारा काम आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या बहुत सारे लोगों ने अपना लॉगिन पेज वगैरह बनाया होगा, तो जब भी आप लॉगिन पेज बनाएंगे और कहीं यूजर ने उसी समय एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये प्रोसेस किस प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्किंग में मेंटेन होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर कर सकते हैं। उसमें जो आप फॉरगेट आंसर वाला या फॉरगेट पासवर्ड वाला इस तरह के जो आप ऑप्शन रखते हैं वो भी इसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही मेंटेन आपके होते हैं, मैनेज होते हैं। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए।
अभी भी कुछ लोगों ने नहीं लिखी है, अभी भी सिर्फ 29 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आई है। 30, 2 more left।